Dear students, today we will study chapter number 14 of mathematics for class 10, and our topic is the right bisectors of sides and angles. I hope that you have book, notebook, pencil and complete geometry box. If you don't have any of the things, please collect it quickly, because without geometry box you cannot draw the figures. Now open unit number 14 of your book. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah assalatu wassalamu alayka ya Habiballah assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi zidni ilma. Today our objectives are, after attending the lecture, you will be able to draw the right bisectors of sides of a triangle. Number 2, draw the bisectors of angles of a triangle. And number 3, draw the medians of a triangle. So we see that what is right bisector, what is the definition of right bisector in our first objective. Yes, activity 1, draw the right bisector of sides of a triangle ABC. So first we will see the definition. What do you mean by the right bisectors? A straight line which bisects the side of a triangle and is also perpendicular to the side is called the right bisector of the side. मीनिंग ये है बेटा कि किसी लाइन का बाइसेक्टर वो होता है जो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, और अगर वो उस पर परपेंडिकुलर भी हो तो फिर वो कहलाता है राइट बाइसेक्टर. तो यहाँ पर हम एक साइड का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, लिहाजा ये कहलाएगा राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड. Now draw the triangle ABC. Yes, we have discussed and we have drawn triangle ABC in our previous lecture, how to draw the triangle. Now after drawing the triangle, we will draw the right bisector. We will bisect the side AB first by drawing the arcs, just like this. We will draw the 4 arcs, 2 arcs from point A and 2 arcs from point B, and by joining these arcs we will draw the right bisector. It is called right bisector because it divides AB in equal parts and it is perpendicular to AB, so it is called right bisector. Similarly, we will draw the other bisectors of the sides, means AC and BC, just like this. We will draw the 4 arcs and join them, the second bisector, and for BC we will draw the 4 arcs and join them, and now you have drawn all 3 bisectors of the sides AB, AC and BC. And now we will write the steps of construction. तो हमने सबसे पहले कौन से साइड का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था वो लिखेंगे. सबसे पहला पॉइंट क्या है, ड्रॉ द ट्राइंगल ABC. ठीक, उसके बाद AB का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था जिसका नाम PQ है. देख सकते हैं हम फिगर में, जो हमने ड्रॉ किया फिगर में वही हम लिखेंगे. PQ इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AC. तो AC का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और जो कि क्या है LM. और उसके बाद जो है हमने ड्रॉ किया BC का राइट बाइसेक्टर जिसका नाम है ST. तो फोर्थ पॉइंट क्या है, ड्रॉ द
right bisector of the side BC. So ST is the right bisector of the side BC. Hence PQ, ST and LM are the required bisectors of the sides AB, BC and AC respectively of the triangle ABC. So ये एक्टिविटी मुकम्मल हुई जिसमें हमने एक ट्राइंगल के 3 राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए और एक पॉइंट और तलब है, इसमें देखेंगे लिखा है नोट, इट मे बी नोटेड दैट राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ABC पासिस थ्रू पॉइंट O, एक पॉइंट से गुजरते हैं, तो ये जो है इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाता है, क्योंकि ये तीनों बाइसेक्टर्स एक पॉइंट से पास होते हुए महसूस होते हैं. ओके, नाउ एक्टिविटी 2, ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC. तो इसमें भी हम ट्राइंगल ABC ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ हम एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे. पिछली एक्टिविटी में हमने साइड्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे, लेकिन यहाँ पर हम एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले विल ड्रॉ ट्राइंगल ABC. यस, लाइक दिस, यू कैन आल्सो ड्रॉ इट. यस, दिस इज योर ट्राइंगल ABC. You can draw it easily. After this, we have to draw the bisector of angle B. So first we'll draw the arc like this, and it intersect at point M and L. So taking M as center and L as center, we will draw the two arcs just like this, and we join B from these arcs, in the intersecting point of these arcs. So this is our first bisector of angle B. Just like this, we draw the bisectors of another angle C. The same method we will adopt here. Just like this, we'll draw a small arc of any radius. Of any small radius, we'll draw an arc first, and then by taking D and E as center, we will draw two arcs and join them. So this will be our second bisector. And similarly, the bisector of angle A we can draw, yes, like this. So these are the 3 bisectors of angles A, B and C of triangle ABC. Now we'll write the steps of construction. So सबसे पहले हमने ट्राइंगल ABC ड्रॉ की, तो पहला पॉइंट क्या होगा, ड्रॉ द ट्राइंगल ABC. उसके बाद हमने क्या काम किया, हमने B को सेंटर बना के एक स्मॉल आर्क लगाई और उसने इंटरसेक्ट किया M और L पर, वहाँ से 2 आर्क लगाई. तो इसी तरीके से आपकी जो है, जो आपने वर्कआउट किया है, पॉइंट वाइज लिखते जाएं, इस तरह आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे. ये आपके 6 जो है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गए. 6 क्या है, सिमिलरली ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ CQ एंड AR ऑफ एंगल C एंड A रिस्पेक्टिवली, जो आपने आखिर में एंगल C और A के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए. हैंस BP, CQ एंड AR आर द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC. यहाँ पे भी एक बात जो है वो गौर कीजिए, नोट है, these bisectors intersect at point I, which is called in center. The bisectors of angles of a triangle are concurrent. ये point I देखें, ये फिगर में नज़र आ रहा है कि तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक पॉइंट से पास होते महसूस हो रहे हैं, जिसको हमने I कहा है. ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है. और ये जो बाइसेक्टर्स हैं एंगल्स के, इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो क्या कहलाएगा, इन सेंटर. याद रखें, ये एग्ज़ाम में MCQs में आ जाता है कि एंगल्स के बाइसेक्टर्स जो होते हैं उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या कहलाता है. तो आपने उसमें इन सेंटर को टिक करना है. ओके, अब हमारे पास थर्ड एक्टिविटी है, ड्रॉ द मीडियंस ऑफ
एनी ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC इसमें ही बनानी है और अब हमने मीडियंस ड्रॉ करने हैं। मीडियंस क्या होते हैं? किसी भी साइड को मिड पॉइंट पर जो लाइन आके टच करेगी अपोजिट वर्टेक्स से, वो कहलाएगा मीडियन। जैसे यहाँ देखें D पॉइंट, ये जो है जो इसका अपोजिट वर्टेक्स है C, यहाँ से ज्वाइन हुआ है, तो ये जो CD है ये मीडियन है। और इसी तरह से ये E जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है BC का, लिहाजा AE जो है ये मीडियन है। और इसी तरह से BF जो है वो मीडियन है साइड AC का। और ये आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि सबसे पहले आप AB को बाइसेक्ट करेंगे। किसी भी साइड को बाइसेक्ट करने के लिए उसके पॉइंट A और B से 4 आर्क्स लगा के और उनको ज्वाइन करते हैं तो वो बाइसेक्ट हो जाता है। इसी तरह आप तीनों साइड के बाइसेक्टर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। जो आप ब्लू लाइन में देख रहे हैं सबसे पहले ये बाइसेक्टर्स ड्रॉ होंगे, और उसके बाद फिर आप अपोजिट वर्टेक्स से इन पॉइंट को मिलाएंगे। जैसे C को D से मिलाएंगे, A को E से मिलाएंगे और B को F से मिला देंगे, तो ये तीनों जो हैं वो मीडियंस ड्रॉ हो जाएंगे। और तीनों मीडियंस ड्रॉ हो जाएंगे तो ये तीनों मीडियंस भी एक पॉइंट से जो है ना पास होते हुए आपको फील होंगे। और वो पॉइंट क्या है? यस, G पॉइंट। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 मीडियंस is G here. Now write the steps of construction. Similarly, you can write the steps of construction. First, draw the triangle ABC. Then, number 2, bisect the sides AB, BC and AC 8 points D, E and F respectively. दूसरे नंबर पे हमने ये काम किया। Third, join A to E, E to F and C to D. हमने इनको ज्वाइन किया, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह thus AE, BF and CD are the required medians of the triangle ABC which meets in a point G, जो G से जो है पास होते हुए महसूस होते हैं, और ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और इस पॉइंट को जो है क्या कहते हैं, जो नोट देखिए, इट मे बी नोटेड दैट मीडियंस ऑफ एवरी ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक पॉइंट से जो है वो पास होते हुए महसूस हो। तो एक पॉइंट G से जो है वो पास हो रहे हैं, दैट इज मीट इन वन पॉइंट, कॉन्करेंट मीन्स, एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कॉल्ड सेंट्रॉइड। यानी मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड। ये भी एज ए MCQs कई दफ़ा एग्जाम में आ चुका है कि सेंट्रॉइड क्या होता है। तो ये डेफिनेशन आपके सामने है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और यहाँ एक बात और गौरतलब है कि ये जो आपने मीडियंस ड्रॉ किए हैं, आप CD को देखें। CD जो है ये डिवाइड हो रहा है CG और GD में। अगर हम गौर से देखें तो ये 2:1 में डिवाइड होगा। हर मीडियन जो है अपने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी से जो है 2:1 में डिवाइड होगा। इसी तरह से BF जो है वो BG और GF 2:1 में डिवाइड हो रहा है, और AE जो है वो AG और GE 2:1 में डिवाइड हो रहा है। लिहाजा हमने यहाँ लिखा कि डिवाइड्स ईच ऑफ देम इन 2:1. So you will draw the triangle and draw the medians, and you can measure these, the length of medians, and you will see that they divides in the ratio 2:1. Now home assignment, solve exercise number 14.3 from your book by yourself. I hope that everything is clear and you will be able to draw the right bisectors of a triangle and the bisectors of angles and the medians of the triangle. Jazakallahu khaira.